Hello students, I hope all of you are safe and healthy in your homes. So today we are going to learn speech writing. Now what is speech writing? Speech is written to express views in public. Yes, because here I am talking about speech writing, not speech, because speech is delivered by a speaker before an audience for a given purpose. And speech is delivered by a national leader, by the head of the school, panel of speaker at an event, specialist in a particular subject. Now comes the format of speech writing. So we can roughly divide the speech writing into three categories. Okay, first comes the introduction, which is of para 1 and which is usually short. Second comes main body, para 2, which is of maximum words. Here you will explain your topic in a detailed manner. Third comes the conclusion, which is usually short. Write in 3 paragraphs. First is initial, second is middle, and third is final paragraph. Now first paragraph is initial paragraph, means starting paragraph, which is introduction. Introduction includes 3 bullet points: greet the audience, introduce yourself, and introduce the topic. And this is common paragraph which you can use in all your speech writing topics. Okay, respected principal, teachers, and my dear friends. Here you are greeting the audience. Okay, I am Dash, the head girl of the school. Here you are introducing yourself. I am delighted to have this golden opportunity of expressing my views on Dash. Here you are introducing your topic. मैंने अपना टॉपिक यहाँ पे विमेंस डे का लिया, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर ऑन द रोल ऑफ विमेन ऑन द ईव ऑफ विमेंस डे. ओके, बट आप यहाँ पे अपना टॉपिक लिखोगे, बाकी सब कॉमन है. ओके, second comes the middle paragraph, which is main body, main content, and this includes facts, data, relevant examples, ask questions, explain your topic in detail, highlight the advantages or disadvantages. अगर आपके टॉपिक में डिमांड है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, then you will write, otherwise you can skip that part. Okay, now this is sample paragraph. You are not supposed to copy this paragraph because this is sample paragraph according to the topic, and my topic is Women's Day. Okay, this is common, you can write this one, but this is a sample paragraph. Gone are the days when women considered themselves weaker. Today they are neither weak nor inferior. They have proved their worth. तो यहाँ पे मैंने fact को use किया. Name any field of progress wherein they have not left their mark. अब यहाँ इस लाइन में देखिए, नेम एनी फील्ड ऑफ प्रोग्रेस वेयर इन दे हैव नॉट लेफ्ट देयर मार्क, क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे था आस्क क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है रिटोरिकल क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज़ रिटोरिकल क्वेश्चन? रिटोरिकल क्वेश्चन में यू आर श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी आंसर फ्रॉम द ऑडियंस. ओके, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन पूछना है जहाँ पे आप वेट नहीं करोगे अपने आंसर के लिए. आप एक क्वेश्चन पूछोगे, टेक 1 सेकेंड पॉज एंड गो ऑन फॉरवर्ड. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने मिडिल पैराग्राफ में इंक्लूड करोगे. दे आर नोन फॉर देयर सिंसियरिटी, सेंसिबिलिटी एंड हार्डवर्क. विमेन लाइक PT उषा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा हैव मेड आवर कंट्री प्राउड. यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को. तो ये था आपका सैम्पल पैराग्राफ. इसको आप और डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हेयर, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थोड़ा फिनिश कर दिया. थर्ड इज़ फाइनल पैराग्राफ, विच इज़ कॉन्क्लूजन. Conclude the topic in 1 or 2 lines with suggestion, message and advice. अपने टॉपिक को conclude करना है इन 1 or 2 lines में. बट अगर आपके टॉपिक में सजेशन, मैसेज, एडवाइस की कोई डिमांड नहीं है तो यू विल नॉट राइट एनी सजेशन. लाइक मेरा टॉपिक विमेंस डे है, मुझे यहाँ पे कोई सजेशन नहीं देना है, तो आई कैन स्किप दैट पार्ट. थैंक द ऑडियंस, स्टूडेंट फॉर देयर सपोर्ट. दिस इज सैम्पल पैराग्राफ. यू विल नॉट कॉपी दिस पैराग्राफ. ओके, I acknowledge the vital role the women play in our society and their immense contribution in shaping and creating the definition of this era. I therefore would like to salute them. Thank you everyone for being patient listener. This line you can copy in all your speech writing. Okay. Now while writing speech you should remember some points. First is write question type on top. यानी जब आप अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करोगे, आप एक फ्रेश पेज से अपने इस क्वेश्चन को हमेशा लिखोगे. राइट,
आपका सपोज करो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 कोई भी क्वेश्चन नंबर है, उसमें इंटरनल चॉइस में आता है ना ये स्पीच एंड आर्टिकल, तो आपको दोनों में से एक चीज़ लिखनी होती है। तो सपोज करो आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया विदाउट राइटिंग टाइप, तो जो चेकर है वो कंफ्यूज होगा कि इसने स्पीच लिखी है, इसने आर्टिकल लिखा है, क्या लिखा है इसने। तो दैट्स वाई आप क्वेश्चन टाइप को फ्रेश पेज के बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखोगे। लाइक आपका ये स्पीच वाला टॉपिक है तो आप लिखोगे स्पीच छोटा सा। ओके, बिगिन विद गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक। आप इस तरह की लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने आपको अभी इनिशियल पैराग्राफ में बताया था, यू कैन सेलेक्ट दैट वन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल। नंबर 3, द प्रेजेंट टेंस इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन यू राइट आउट अ स्पीच। जब हम स्पीच को राइट करते हैं यूजुअली प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ किया जाता है, बट इन सम पॉइंट्स लाइक आप कोई फैक्ट दे रहे हैं या आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन दैट केस यू कैन राइट पास्ट टेंस, या आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं जिसमें आप सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, यू कैन राइट फ्यूचर टेंस। ओके, बट यूजुअली आप प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करोगे। नंबर 4, डिफाइन द टॉपिक, गिव इट्स कॉजेज, अफेक्ट, द प्रेजेंट स्टेट एंड द रेमेडियल मेजर्स। Clarity, organization and systematic presentation of ideas are very important. अब इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि जो भी आप टॉपिक को राइट करोगे उसे एक आपने सिस्टमेटिक मैनर में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप सपोज करो मिडिल पैराग्राफ में फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या था, फैक्ट, सेकंड क्या था, डेटा। आप डेटा लिखने बैठते हो, ठीक है, एक डेटा आपको याद आता है, स्टार्टिंग में आपने लिख दिया। अब जो डेटा वाला सेक्शन है, चाहे आपके पास एक एग्जाम्पल है चाहे आपके पास 2 एग्जाम्पल है, आपने उसको लिख दिया। नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। अगर आपको सारे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए आपने एंड लास्ट में आपको एक डेटा याद आता है कि मैंने ये भी इसमें इंक्लूड करना है, तो आप उसको स्किप करोगे, आप उसको दोबारा नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर सिस्टमेटिक मैनर में आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है स्पीच की तो वो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, नंबर 5, should be a coherent piece clearly stating a particular point of view. Coherent piece means वही कि आपने systematic manner में लिखना है, stating a particular point of view. Number 6, divide the speech into 3 to 4 paragraphs, leave a blank line for paragraph distinctions. अब इस पॉइंट में हमें क्या कहा है कि जब आप अपनी स्पीच राइटिंग को राइट करोगे तो आपने उसको 3 to 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, now next comes the practice question. Write a speech on benefits of early rising in about 200 words. Okay, this is your practice question. I am giving you the practice question, and I hope after doing this practice question you will come to know that how much practice you need to cover this topic, because जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, इनिशियल, मिडल एंड फाइनल पैराग्राफ, तो सुनने में आपको ये इजी लगा होगा, बट वाइल यू प्रैक्टिस डूइंग एनी टॉपिक, एनी सरप्राइज टॉपिक, तो आपको तब पता चलेगा कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।